हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड और ऑल्सो आप तो जानते ही होंगे, आदित्य गुप्ता है हमारे आज के पॉडकास्ट में। और ये मेरे लिए बहुत मतलब फन एक्सपीरियंस होने वाला है, एट द सेम टाइम बहुत ही एजुकेशनल एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्लोज टू आवर हार्ट्स टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज, which is mental health issues in doctors in specific and also in general among our younger age group. तो आदित्य गुप्ता, I think you might you want to introduce yourself, क्योंकि मेरे साइड से तो पता ही है सबको, तो तुम भी बताओ how you would want to introduce yourself. Hello everyone, I am Vishnu's 1 year junior. I'm a 2012 batch Amazonian, and after that I did just like we just diverged. We cleared the exam at same time. Vishnu clear in same May 2018. Vishnu ने MD Peds की PGI से I did it again for mains, and then now I'm doing my DM in pediatric oncology, and that's about me. हाँ, थोड़े फ्री टाइम में एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा जो थोड़ा सा unexpectedly popular ho gaya. So even for me, being honest about it, but that's about it. I in this podcast, in this healthcast, I'm just simply a junior of Vishnu who faced mental health issues as a doctor, and I'm here to elaborate on that rather than anything else. Exactly. And I myself have faced a different sort of disorder, that is like seasonal affective disorder, for a few times, which is a mild version of an affective disorder, which happens in winters. So we'll talk about that through this podcast. And also Aditya will talk about himself. So, before we go into our own stories, my first question would be how the stigma is surrounding mental health issues that affects doctors, and also how it affects them seeking treatment for those issues. I think the stigma over the years, definitely, I won't deny, has reduced. Matlab, has definitely reduced a lot. But what has basically happened, but what it would be still safe to say that a lot of stigma still is there. What happens is that the field of medicine has always been built around that we are the ones taking care of patients, and that has to be done irrespective of anything, perpetuating toxicity, a lot of toxicity, a lot of um, stress amongst doctors. And what has that resulted in? People who have themselves never faced these mental health issues, उनके issues नहीं हुए, उनको ये लगता है कि कोई अगर face कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, कामचोर है. मतलब what I personally feel is कि like since we are doctors, obviously we do understand that these mental health issues occur. We know depression is real, we know anxiety is real and everything. But कभी भी हमारे colleague या हमारे junior या हमारे senior में होता है, तो क्योंकि हमारा इतना हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है, लाइक द बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं कहूंगा, आई विल स्टिल से लाइक कि वो स्टिग्मा ही है कि हम लोगों का पहला चीज ये होती है बोलना कि वो तो कामचोर है, या वो लाइक ही इज समवन हु वांट्स टू रन अवे फ्रॉम वर्क एंड दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग दिस. सो व्हाइल दैट एस्पेक्ट की, सो आई वुड से स्टिग्मा इज ऑफ टू थिंग्स. पहले एक स्टिग्मा होता था मेंटल हेल्थ का कि अरे वो तो पागल है, like he's abnormal, or like Sankhi and all, like you understand those terms. So that stigma has definitely reduced both in the society and, let's say, amongst the doctor community. Medical freedom. But I feel that that has risen too, because when so many people have come forward with the fact that they are struggling with mental health issues, is that a lot of people who see, everyone has different level of जितना वो स्ट्रेस झेल पाते हैं. तो व्हाट हैज दैट हैज हैपेंड कि जो ज्यादा स्ट्रेस झेल पा रहा है, जो उसके कंपैरिजन में जिसको कम झेल पा रहा है, उसके लिए देयर परसेप्शन इज लाइक यार वो तो कामचोर है या वो फेक कर रहा है एंड ऑल दैट. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता कि दे, आई विल स्टिल से देयर इज अ स्मॉल माइनॉरिटी जो कि हो सकता है मेंटल हेल्थ को एज एन एक्सक्यूज यूज करता हो. डेफिनेटली पॉसिबल है. जस्ट लाइक स्टोरीज में दिखाते थे, व्हिच वाज दैट मूवी प्राइमल फियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें one person had faked a mental illness to escape
वो मैकनॉटन रूल्स होता था ना बेसिकली फॉरेंसिक हाँ हाँ साइकाट्री हाँ में। मेरे को हिंदी वर्जन याद है, दीवांगी करके एक मूवी है उसमें होता है, मैं कौन सी? मल्टीपल मूवीज। दीवांगी करके एक मूवी है, हाँ उसमें एग्जैक्टली अजय एग्जैक्टली। देवगन करता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही वाली। सो जिस जो उसका इंग्लिश वर्जन है, आई थिंक वो है, क्या कहते हैं, एडवर्ड नॉर्टन है उसमें, ओके। प्राइमल फियर। So anyhow, so the thing is that I'm not saying that mental illness, there's a small minority that might be faking it, but the large minority is not. And what people tend to do is that they like start claiming कि वो चोर है या वो है, फेक कर रहे हैं and everything, because obviously इनके लिए unlike other things ऐसे कोई blood test नहीं है। but अगर हो पाता, जैसे even Three Idiots में वो बोलता कि वो stress meter हो पाता, if you would have invented something like that, would have realized that a lot of these suicides and a lot of these crises, these are not they are actually murder, मतलब not murders बहुत बड़ा term हो गया, but yes they are real and they do contribute to this. So मतलब stigma कम हुआ है but it's still there. It has, I feel it has taken a different form over the period of time, because राइट, अब स्टिग्मा कम करने की कोशिश की वजह से अब लोग, they, एक I think विशियस सर्कल है मतलब, हाँ sort of। people have become sensitized कि अच्छा हम लोग पागल नहीं बोल सकते ना, तो अच्छा ये बोल देते हैं फेक है। मतलब मेरी थ्योरी है, मुझे नहीं ओके पता हाँ। क्या है, बट आई डेफिनेटली हैव फेल्ट दैट स्टिग्मा रिड्यूस डेफिनेटली हुआ है। बट एक ये फॉर्म ऑफ स्टिग्मा डेफिनेटली स्टार्ट हो गया है, या ये फॉर्म बहुत कॉमनली है कि मतलब कामचोर एंड ऑल दैट वाला। राइट, और अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर और एक कोई भी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हु स्ट्रगलिंग विद दीज इश्यूज, उसके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है? लाइक इट्स इजी टू से कि अच्छा चलो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, बट डू यू थिंक देयर आर एनी अदर ब्रिज लाइक फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल टू आर एज ग्रुप, आई थिंक at least AIMS especially at and doctors, for doctors? AIMS and at least central institutes do have counselors as well and clinical psychologists as well. I think a lot of stigma and the stigma in ourselves to go to a psychiatrist stems from कि वो हमें दवाई लिख के देगा, and that medicine is going to alter our brain or is going to alter our personality or something on those lines. Basically ये बहुत बड़ा stigma है. हाँ This is a stigma that is preventing us from seeking out in the first place. कि हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है, लाइक हम्म। हमारा जो अंदर का जो वो क्या कहते हैं सोल है उसको कुछ चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम ड्रग ले रहे हैं, समथिंग ऑन दोस लाइन। तो a lot of people, while they might be uncomfortable going to a psychiatrist, I've seen this a lot, they are still okay talking to a counselor, and even that helps, to be honest, a lot, Yeah. very frank. So I think by as far as resources are concerned, obviously it's always best to go to and visit a psychiatrist, but अगर हर कॉलेज में या किसी एरिया में अगर कोई काउंसलर हो तो वो एंट्री बैरियर टू सीक हेल्प ना कम हो जाता है, बिकॉज जो स्टिग्मा खुद का होता है टू एक्सेस दैट पर्सन वो कम होता है, बिकॉज ओके काउंसलर कोई आपको मेडिसिन नहीं दे रहा, दैट इज मोर ऑफ अ थेरेपी सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग rather than medicine being prescribed. Having said that, some disorders and some after a particular intensity you do require medications. You cannot not do with medications. Those medications are proven to be beneficial in trials and everything. So there is no reason you not to after if it's not getting controlled with therapy, not to take those medicines. It's okay, like अगर किसी का बीपी कम होता है या किसी का बीपी बढ़ा होता है तो हम लोग ये नहीं कहते कि ये तो फेक, ये तो अननेचुरल है। हमारी टेंडेंसी होती है बोलने के लिए अननेचुरल मेडिसिन। हम ये नहीं कहते कि अरे ये मेडिसिन अननेचुरल है, तो नेचुरल तो हाई बीपी और स्ट्रोक होके मरना है। तो if we have conquered those chronic diseases with the help of a medicine, if we're conquering mental health with the help of and helping us live a better life, a better mental peace वाली life, तो वो एक दिन की एक गोली खाना is not a big deal। मतलब why are we so stigmatized about that? वो चीज मुझे समझ नहीं आती। तो बट आई फील कि अगर काउंसलर्स और हो तो वो एंट्री बैरियर तो टू हेल्थ कम हो जाता है। तो हम अभी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए विच वी हैव ऑलमोस्ट ऑल सीन द मोर लाइक स्ट्रेसफुल फेजेस ऑफ स्टूडेंट लाइफ, एटलीस्ट हमने लाइक क्रॉस किया है। तो थ्रू दोस टाइम्स हाउ डू यू थिंक लाइक us as experienced people and you specifically going through a phase itself, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं अपने ये स्ट्रेसर्स along with our own expectations and the targets we want to achieve प्रोफेशनली या पर्सनली, तो वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
मैं डॉक्टर स्पेसिफिकली के लिए ये बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा ना एक बैरियर हम लोगों ने खुद के दिमाग में लगाया हुआ है कि सब कुछ ना पहली बार में निकालना है, कि we have to crack the NEET in the first go, NEET PG in the first go, NEET SS in the first go. And I'm saying this as someone who has actually cracked two of these entrance examination in the first go and another one in the second attempt itself, like 6 months के बाद ही हुआ है, कि ये बेमतलब का बैरियर हमने बनाया हुआ है, and this contributes to a lot of stress for no reason. जब ऑलरेडी फील्ड 12 साल लंबी होनी है बेयर मिनिमम करके, तो 13 या 14 भी हो जाएगी या 15 हो जाएगी तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्क नहीं पड़ना. तो the more important thing is that you should actively take a break. Like this is a thing that I have realized कि break taking का मतलब ये नहीं होता जब आप काम नहीं कर रहे. Break taking is also an active process. तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपका एक कुछ chronic phase है जिसमें स्ट्रेस आने वाला है, तो एक्टिवली ब्रेक्स डालो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए. कि मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा मैं पढ़ के थक गया तो अब मैं रेस्ट ले रहा हूँ, नहीं, एक्टिवली एक पॉइंट के बाद लेनी है, मतलब देखना है मेरे को, म्यूजिक सुनना है, मतलब क्योंकि लाइक वरना कि फिर एक पॉइंट आएगा जब यू विल कीप पुशिंग हाँ, योरसेल्फ एंड अगर यू इट विल बी आउट ऑफ एक और कंट्रोल. बोलो कि मैं थक गया इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो वो तो तब तो आप टूट चुके हो. दैट इज अ लाइक वो स्ट्रेच करके आपने एकदम उसको तोड़ हो चुका है. रादर ब्रेक टेकिंग इज आल्सो एक्टिव, कि अगर लेट्स अज्यूम मतलब like let's assume someone is in JR-ship or anything for that matter of fact, तो 3 4 5 महीने के बाद एक बार एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तो एक्टिवली सीक आउट कि एक दिन की कैजुअल, एक दिन की लो, बट एक दिन की कैजुअली किसी तरह ले लो. एक दिन के लिए कोई कभी मना नहीं करता, बीइंग ऑनेस्ट, मतलब Yep. दे देता, एक दिन की छुट्टी मिल जाती है. मतलब अगर नो मैटर हाउ मच पीपल से कि कितनी भी टॉक्सिसिटी है इंडिया में, 1 या 2 दिन की छुट्टी लेनी हो, कुछ गंदा सा बहाना मार के ले लो और उसमें एक्टिवली रिलैक्स करो, या तो सो जाओ एक्टिवली या घर चले जाओ, बट मेक श्योर दैट ब्रेक टेकिंग बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस कि मेरे को करना है, रादर देन यू वेटिंग कि अब मैं एकदम पागल हो चुका हूँ अब मैं भाग रहा हूँ एंड ऑल दैट. जब एक्टिवली ब्रेक्स लोगे तो वो थोड़ा बहुत रहेगा, एंड ऑब्वियसली काउंसलिंग एंड थेरेपी विल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. मतलब अगर इफ यू कैन फाइंड टाइम फॉर दैट, ग्रेट, बट ऑब्वियसली डॉक्टर्स का टाइम ही नहीं होता, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर देयर मेंटल हेल्थ बीइंग डिटरेटिंग. तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो टाइम निकालना भी एक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. सो हाँ, मतलब वही जैसे अगर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो 6 महीने वर्क करते 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 एंड देन दे जस्ट कि छोड़ रहा हूँ मैं ब्रांच, उससे एग्जैक्टली. मतलब विच यू एक्चुअली लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू जॉइन इट. तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम 3 महीने पे 2 दिन 3 दिन या 2 महीने पे ले लेते तो इट वुड हैव बीन लाइक यू वुड हैव स्टिल एंजॉयड और एंड कंटिन्यू. मतलब लाइक जैसे कि अगर कभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तब स्ट्रेस हो, तो मेक श्योर कि महीने में या हफ्ते के एंड पे मतलब एक्टिवली मैं जाऊंगा एक मूवी देखने. आई मेक श्योर दैट आई डू दैट आउटिंग. मैं ऐसा नहीं है कि मैं तब थक चुका हूं तब मैं करूंगा, बिकॉज तब तो जब थक चुके हो तब तो वो ब्रेकिंग पॉइंट है. लाइक ब्रेन को डोपामिन तो देना है, इट्स लाइक मतलब फूड एट सम एक्टिवली जो पॉइंट. ब्रेन को डोपामिन, मतलब दैट इज द मेन, वो चीज है. तो ये it works for residents as well as doctors. Like my next question was कि तुम medical students को क्या advice दोगे as through your MBBS. यही एडवाइस है कि क्या ब्रेक्स लेने, मतलब लॉट ऑफ आर लाइक नॉट एंजाइटी, बट जो हम लोग जो स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं ना, मतलब स्ट्रेस को निकालने का तरीका मेरे हिसाब से तो वो भी एक्टिव है. मतलब एक्टिवली ब्रेक ले लो रादर देन वेटिंग स्ट्रेस चला जाएगा. स्ट्रेस तो कभी नहीं जाने वाला. Stress is never going to go away. Our lives are unfortunately going to be very stressful. तो actively take part in something जो कि तुम्हें थोड़ा stress ले करे. मतलब for me YouTube was also actually the way to get rid of my stress. इसलिए मैंने उसको actively थोड़ा सा pursue किया था कि रोज आता था, तो instead of lying down and getting to sleep and then getting angry कि रोज का मेरा साइकिल ये बन गया है कि मैं बस 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहा हूँ फिर सो रहा हूँ and all that, actively आके मैंने आधा पौना घंटा YouTube like half an hour YouTube करना शुरू किया. That became my hobby. So whatever your hobbies, उसको एक्टिवली थोड़ा परस्यू करने की कोशिश करो. ऑब्वियसली अगर रात के 11 बजे फ्री हो रहे हो तो कोई हॉबी बनती नहीं है, बट ब्रेक ले लो. मतलब बट देयर आर थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ. और ऑब्वियसली मतलब एक पॉइंट के बाद मैं क्या बोलूँ, लेकिन इंडिया की रेजिडेंसी एक्चुअली इतनी खराब है, मतलब जब आपको मिल ही नहीं रहा टाइम आप कहाँ कुछ करोगे. बट फ्रॉम वट एवर मॉडिकम स्मॉल थिंग्स इट्स पॉसिबल, मेक श्योर दैट द ब्रेक्स आर एक्टिव एंड those breaks then help you continue for longer till the time things become better. बस मैं यही बोल पाऊंगा.
सो कि जैसे हमने पहले बात किया। बट ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल नहीं है कि ब्रेक ले रहे हो या ये कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास ना जाओ, अगर लग रहा है जाना है तो चले जाओ। मतलब दिस इज नॉट लाइक, दिस इज जस्ट अ मेथड कि हम लोग थोड़ा स्ट्रेस बेटर डील कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्ट्रेस डील नहीं हो रहा तो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, मैं ब्रेक लेके देखूंगा एंड ऑल दैट। नहीं हो रहा, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म एंड देयर इज हार्म तो छोड़ो, कुछ स्टिग्मा होना ही नहीं चाहिए यार। ही इज योर फ्रेंड एंड ही इज योर पर्सन हु इज like who's going to help you. And I think college and universities, I think BJ Medical College में I think we saw it on Twitter, like they had given that number and you know actively trying कि अगर कभी कोई problem हो तो आप हमें वो करो. Colleges also should take this initiative कि mental health को अपनी as a policy implement करें, तभी things will improve. Because अगर अब तक आप बोलते रहोगे कि नहीं हम कर रहे हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं, यहाँ पे environment अच्छा है, कहीं environment नहीं अच्छा, at least in medical colleges in India. 99% of the medical colleges and 90% of the medical colleges are toxic, where you know people just keep on abusing, passing on that circle of abuse of senior to junior to junior to next their juniors and so on and so forth. Until someone actively takes an effort कि मैं थोड़ा बहुत उसको कम करने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं होने वाला. तो वो चीज है. मतलब माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इटसेल्फ कि मतलब अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर एट पीयर लेवल, एट सीनियर लेवल एंड आल्सो एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एज इन डीन हो या फिर रजिस्ट्रार हो, क्या मेजर्स ले सकते हैं मेनली विद इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, यू बीइंग अ सीनियर और यू बीइंग अ पीयर? What I have started doing is कि मतलब यार one thing I've realized from my now being a senior resident कि काम कराना है, like you know what हाँ. a lot of say ना कि अगर हम लोग टॉक्सिक नहीं होते तो जूनियर्स काम ही नहीं करते. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें काम के लिए करवाना नहीं आता, बट यू कैन गेट द वर्क डन विदाउट शाउटिंग एट अ पर्सन ऑल्सो. ठीक है, अगर स्कूल टाइम याद करो तो स्ट्रिक्ट टीचर्स वर नॉट दोज जो कि शाउट करती थी या नहीं करती थी. अगर स्कूल टाइम में स्ट्रिक्ट टीचर्स इनफैक्ट कभी शाउट नहीं करती थी, जस्ट हैड दैट थिंग जिसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट बन सकती थी. एक लुक होता था उनके पास बस. लुक होता था एवरीथिंग. You can be strict without shouting, without demeaning, without you know making the other person feel as if he is worthless or anything, and get the work done. And there are multiple ways. मतलब मैं तो अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि तू काम करना शुरू कर, तेरे को जो खाना अच्छा लगता है या जो तेरे को you know the best pizza या the best burger like you want to have, a lot of them for them, like you know sort of like small rewards for them if they are like you know working and everything. If they do a work well, I like you know मेक श्योर कि मैं उनको बोलूं कि काम करना अच्छा. लाइक तुम गाली देने के लिए हर समय तैयार रहते हो कि तूने ये नहीं किया, बट कभी किसी ने वो काम कर दिया और अच्छा किया तो तारीफ भी कर दो. यार 4 बार तारीफ करोगे तो वो एक बार गाली सुनने के लिए भी वो ठीक तैयार रहेगा जब वो नहीं कर रहा. इनफैक्ट वो हो सकता है ज्यादा अच्छे से काम करे ताकि उसको वो गाली ना सुननी पड़े. हाँ. अगर तुम बार बार गाली वरना गाली डिफॉल्ट है उसके लिए, डिफॉल्ट बन जाता है. गाली उसके लिए डिफॉल्ट है तो फिर एक पॉइंट का वो काम भी कम करेगा. Toxicity is not at all about work. Working hours obviously do contribute to it, but a lot of it is simply that you are being assholes to your juniors. Just don't be that. बहुत आसान है यार. वो तुमसे कह रहे हैं कि सर मैं थक गया तो ले लो 1 या 2 सैंपल यार, कुछ नहीं छोटे होने वाले. हमारे यहाँ तो 4 पेशेंट होते हैं तो कभी कभी अगर मेरे को दिखता है कि शायद वो एक दिन लेट आ गया, लेट्स अज्यूम हो जाता है यार, रोज वो 8:30 9 बजे जा रहा है, एक दिन ज्यादा सो गया, ठीक है लेट आ गया, तो अगर चारों के सैंपल करने हैं उसने वो नहीं हो रहे, मेरे को दिख रहा है कि वो 3 तक ही कर पाएगा, तो एक मैंने सैंपल ले लिया. तो अब नो आइडिया कि वो एक सैंपल मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, वो उसके लिए कितना बड़ा वो है कि मेरे हेल्प करती है एवरीथिंग, और वो उसके लिए कितना बड़ा लोड खत्म हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में से ये चल रहा है कि वो एक सैंपल नहीं होगा, उसके लिए मेरे को डांट पड़ेगी, और उसके लिए डांट पड़ेगी मेरे को, इसलिए वो ऑलरेडी स्ट्रेस जो बाकी सैंपल लेने हैं वो भी वो ढंग से नहीं ले पा रहा, उनके लिए भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है. तुम एक छोटा सा हेल्प करके तुम्हें वो छोटा नहीं कर देगी, वो छोटा सा हेल्प करना, एंड यू विल लाइक यू नो उसका टॉक्सिसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दोगे. स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विल गो अ लॉन्ग वे. दैट्स अबाउट इट. ये तो हो गया चलो इंडिविजुअल एंड पीयर एंड सीनियर लेवल. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे व्हाट आई फील इज कि काउंसलर्स हर कॉलेज में होने चाहिए, एंड पीपल शुड टेक दिस इशू सीरियसली कि कल को कोई बोल रहा है कि सर मैं नहीं आना चाहता. एक what I feel is this is something I feel crazy about. यार वीकली ऑफ देना बहुत आसान है, बहुत आसान है वीकली ऑफ देना. I don't understand कि why half the medical colleges in this country don't have the concept of weekly off कि रोज सब लोग आएंगे.
क्या बकवास है। ऑन रोटेशनल बेसिस तुम वीकली ऑफ दे सकते हो, बहुत आराम से दे सकते हो। ऑब्वियसली इट मीन्स कि एक दिन किसी एक बंदे को काम एक्स्ट्रा करना है, बट जब ये सबको पता होगा ना कि किसी एक दिन को किसी एक को काम एक्स्ट्रा करना है, एंड उसकी तो जगह उनको एक और दिन ऑफ मिल रहा उसको खुद है, भी तो मिल रहा है, या डेफिनेटली। एवरीवन विल बी हैप्पी। ये क्या बकवास है कि रोज सब लोग काम करेंगे गधों की तरह और कोई ऑफ नहीं लेगा, और सिर्फ सब लोग ही दुखी रहेंगे। तुम रोटेशन वाइज कर, मतलब कर लो ना, लाइक ये दिस इज लाइक दे आर वेरी इजी नहीं, दैट स्मॉल। एक्चुअली स्टेम्स फ्रॉम द टॉप ना। टॉप वाला यही सोचेगा कि सबसे जूनियर वाले को मैं क्यों दूं, क्योंकि जब मैं ले सकता हूँ बीच बीच में, उसको क्यों दूं? आ ही रहा है तो आने दो उसको। थोड़ा थोड़ा करने लग ये जाओ, होता थिंग्स विल इंप्रूव। द पॉइंट इज दैट थिंग्स आर सो ब्लडी बैड कि थोड़ी इंप्रूवमेंट भी बहुत ड्रास्टिक लगने वाली है। है। सो दैट इज अबाउट, मतलब ये, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत स्मॉल स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन improve the mental health drastically of residents at least. काइंडनेस डजंट कॉस्ट अ थिंग, तो It doesn't cost it. एक और चीज, फ्रैंकली हम सब लोग नर्ड्स होते हैं, हम सब लोगों को पढ़ाई बहुत पसंद है, तो टेक एन इनिशिएटिव टू, मतलब इतना काम कराया तो एंड में मेक श्योर अपने जूनियर को कुछ सिखाओ या उसको कुछ पढ़ाओ, उससे भी या खुश हो जाएगा यार। उससे भी खुश होता है डेफिनेटली। अगर वो बाय खुश चांस तुम उसका लोड नहीं कम कर पा रहे, देख रहे हो कि यार अब पढ़ाई है की काम, तो भी कुछ वो नहीं खुश कर हो सकते, जाएगा। तो उनको पढ़ा दो, तो उससे भी दिल बी वेरी लाइक ग्रेटफुल एंड हैप्पी, और दिल फील लाइक कि अच्छा ठीक है, मतलब हम सीख रहे हैं कुछ, तो चलो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट हम एंड करते हैं ये पॉडकास्ट, ये हेल्थ कास्ट, विद समवन हु हैज जस्ट गिवन एन अमेजिंग टेडएक्स टॉक। तो वो भी यू कैन विल लिंक दैट, विल अटैच दैट लिंक एज वेल, तो वो भी आप चेकआउट करो। सो थैंक यू आदित्य। I will say to everyone who's watching this, do subscribe to this channel. Like a really nice initiative by Vishnu, Anupam, and Kanodia and everyone. They are bringing doctors from different walks of life, talking about common issues in a normal language, so that it reaches a very broad audience. A really nice initiative, and मतलब बहुत अच्छा लगता है, like things like that. So ask everyone to, like typical YouTuber style, like, share, subscribe, definitely. And yeah, so on that note we'll end this, right? चलो, चलो। ओके।